बेटा स्टार्ट करते हैं। अ चार्ज पार्टिकल enters the electric field perpendicularly 90 डिग्री पे with velocity v show that it will follow a parabolic path. Show that it will follow a parabolic path. ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ऐसे। एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इसकी विड्थ x है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, of width x. Consider a uniform electric field of width x. A charged particle q enters the uniform electric field perpendicularly. Enters a uniform electric field perpendicularly. Enter a uniform electric field perpendicularly. Okay, it will experience force in the upward direction. Now F का फॉर्मूला क्या आएगा? QE आएगा, चेक कर। F equal to QE. बोलो। Yes, sir. तो it will experience force in the upward direction. अब इसकी वेलोसिटी क्या बेटा एंटर की है? U ले लो। And it enters a 90 degree to the electric field. It will experience force along y-axis. It will experience force along y-axis. Yes or no? It will experience force along y-axis. So Fy equal to QE. तो एक्सेलरेशन along y-axis क्या आएगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स along y-axis by mass. It is q by m. Yes or no? So axis along y-axis is q by m. Clear? Now as लिखे आगे, as no component is along x-axis. x-axis में कोई component नहीं है. As no component is along x-axis, therefore no component along x-axis, therefore I repeat, no component along x-axis, therefore no force along x-axis. No force along x-axis. So force along x-axis is 0. Therefore acceleration along x-axis is also 0. Therefore acceleration along x-axis is also 0. बोलो clear यहाँ तक बात? Force y-axis is 0. Sorry, force along Yes, sir. 0. क्योंकि force किस तरह लग रही है? सिर्फ y-axis पे लग रही है. ठीक है बेटे? x-axis ये वाले होते हैं. तो no force along x-axis, no acceleration along x-axis. Therefore along x-axis, therefore along
Therefore, along x-axis, the motion along x-axis is uniform motion. Motion along x-axis is uniform motion. Motion along x-axis is uniform motion. बेटे डायग्राम थोड़ा सा रब कर दो साइड से. Yes, sir. ओके. अब देख बेटे, y और x में एक्सेलेरेशन आ गई, तो x की इक्वेशन क्या बनी? uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर. यस और नो? s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. तो अगर x Yes, sir. t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, x is ut, ax 0 है ना? दूसरी इक्वेशन चेक कर, y is uy plus half a by t square. y uy 0 plus 1 by 2 एक्सेलेरेशन ऑफ एक्सिस की वैल्यू क्या है? qe by m into t square. तो y की इक्वेशन क्या बनी? qe by 2m t square is x square by u square. ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बन जाता है k x square. ठीक है, it is k x square. Hence it will follow parabolic path. Y is proportional to x square is a parabola. Hence it will follow parabolic path. It will follow parabolic path. ठीक है, अब बताओ पूरा डेरिवेशन क्लियर हुई? Yes, sir. खुशमिता, मुस्कान, सुहानी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमने कल किया था, if it enters along the electric field या against the electric field, either the motion is accelerated or retarded. But if it enters at 90 degree, it will follow a parabolic path. ये पूरी इक्वेशन आती है बेटा डिराइव करनी बोर्ड में, इसमें फॉर्मूला भी आएगा आपको कंपटीशन में. ये वाला फॉर्मूला है ना, QE by 2m x square by u square, ये फॉर्मूला आएगा बेटे. अच्छा, दूसरी बात, ये पैराबोलिक पाथ तब तक फॉलो करेगा जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. Once it comes out of the electric field, it will follow straight line. ठीक है बेटे?
जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर किया, ये ऐसे ये सीधा जा रहा था, तो ये हिस्सा y आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? क्यू ई एक्स स्क्वायर 2m u स्क्वायर, क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय 2m u स्क्वायर। ठीक है, वंस इट गोज आउट इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, or sorry straight line. Once it comes out it will follow a straight line. पूरा बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. Now, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आर्टिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल is a combination of two equal and opposite charges held close to each other. Is a combination of two equal and opposite charges held close to each other. They form an electric dipole. ठीक है, दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो सबसे पहली चीज आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दैट इज नॉट अ फिजिक्स टर्म। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये टर्म पढ़ी हुई है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कहां पढ़ते हो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ जी बताओ। सर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल। हाँ, बॉन्डिंग में जब आप जैसे बात करते हो, जैसे मैंने HCl बनाया, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा गिव एग्जांपल ऑफ डाइपोल। अब आप जब केमिस्ट्री में करते हो, ठीक है, तो ऐसे लिखते हो ना, H पे हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास शेयर कर लिया, Yes, sir. तो उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के ले गया, उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या बनता है? HCl, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो HCl हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, ठीक है। Yes, sir. तो ये कुछ एग्जांपल है डाइपोल के।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कर दो बोर्ड क्लीन? Yes, sir. ओके। तो एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहली चीज इसकी लेंथ होती है, डाइपोल लेंथ वो होती है 2a। क्या होती है? 2a। अब यहां पे लिखो कि जो डाइपोल लेंथ है इसको 2a क्यों लिया जाता है, हम a या x या y क्यों नहीं लेते? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्योंकि जब मेरे को सेंटर लेना है तो सेंटर से वो इजीली हाफ ए और ए बन जाता है। याद है मैंने आपको एक दिन पहले भी न्यूमेरिकल कराया था, ये बताया था कि मैं x लेके x/2 करना प्रेफर नहीं करता हूं। उससे क्या होता है कि रेसिप्रोकेट में आके दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल में भी डेरिवेशन में भी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ क्या लेता हूँ 2a, हाफ करूंगा तो इधर a और a आ जाएगा, उससे मेरी जो सिमेट्री है वो इजीली हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. So just because of symmetry we take the dipole length 2a. क्लियर? पहली चीज, डाइपोल की लेंथ कितनी लेते हैं बेटे? 2A. 2a। ओके, नेक्स्ट लिखो जी, नेट चार्ज ऑन डाइपोल। जीरो। चार्ज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी समेटिव प्रॉपर्टी है, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना आ गया? जीरो। नेट चार्ज डाइपोल जीरो। क्लियर? Yes, sir. बोलो। ठीक है, ओके। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है? अर्षिता आप बताओ। Vector. वेरी गुड, शाबाश अर्षिता। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो क्या इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है कहीं पे? सोच। देख बेटे, अगर मैं यहां पे पॉइंट लेके चलूं तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो क्या कैंसिल आउट होगी? Yes, sir. दोनों सेम डायरेक्शन में बेटे। मुस्कान, विल दे कैंसिल आउट? कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट। Opposite. यहाँ Opposite. पे अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कल? इट इज क्यू बाय 4πr²। डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है कि कम ज्यादा है? खुशमिता, Sir, equal है. एक बार दोबारा देख बेटे। राज, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और डिफरेंट? सिद्धार्थ, सर कम ज्यादा है। वेरी गुड, Sir, different. डिफरेंट है क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ना बेटे। खुशमिता, Yes, sir. Okay. अगर मैं यहां पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं तो यहां पे भी डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो इसके आसपास कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो और कैंसिल आउट हो सके। आई बस
ठीक है, इवन दो द नेट चार्ज इज जीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट। ठीक है, लिखे इवन दो द नेट चार्ज इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, but electric field exists around the electric field exists around the dipole. Clear? नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज आइडियल डाइपोल। हम थ्योरी करने के लिए आइडियल चीजें लेके चलते हैं। ठीक है, तो आइडियल डाइपोल, व्हेन टू चार्जेस as big as possible held as close as possible, they form an ideal dipole। चार्जेस बड़े से बड़े और जितना पास रख सकता हूं उतना ज्यादा पास रखेंगे, क्योंकि ज्यादा पास रखने में क्या होगा, ज्यादा पास रखने में चार्जेस को जो ज्यादा पास वो चिपक जाएंगे। यस और नो? तो चार्जेस जितना ज्यादा बड़े, डिस्टेंस जितना कम से कम, वो क्या बन जाएगा, एक आइडियल डाइपोल बन जाएगा। क्लियर? ना सिद्धार्थ, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की थी, बताओगे कौन सी डायरेक्शन होती है? राहुल, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव नेगेटिव। पूरा बोर्ड क्लीन कर दो, आइडियल डाइपोल लिख लिया बेटे? Yes, sir. ओके, अब हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल पी। It is defined as equal to product of either charge and distance between two charges, equal to product of either charge and distance between two charges. Product of either charge and distance between two charges. Distance between two charges कितना है? 2a। तो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? Q into 2a। ठीक है? Now electric dipole moment is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity, and direction of dipole moment is from
negative to positive charge, and direction of dipole moment is from negative to positive charge. ठीक है ना? चार्ज के यूनिट्स क्या हैं सुहानी? चार्ज के कूलम। वेरी गुड। और डिस्टेंस के मीटर, तो इसके यूनिट्स क्या बने? कूलम मीटर। बड़ा सी छोटा एम लिखना है, बोर्ड में क्वेश्चन आया व्हाट आर यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, बच्चे ने लिखा छोटा सीएम। छोटा सीएम किसको रीड करता है? सेंटीमीटर को। हमें क्या लिखना है? सी बड़ा लिखना है कूलम के लिए, और डिस्टेंस के लिए मीटर। याद रखना बेटा। सिंपल क्या है? स्मॉल p, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ either charge and distance between two charges. And distance between two charges. पूरा बोर्ड क्लीन? Yes, sir. No. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है बेटे। On axial and equatorial line. I repeat, on axial and equatorial line. Shout please. Electric field on an axial line of a dipole. Electric field on an axial line of a dipole. If this is dipole minus q plus q, ये पॉइंट P ले लें सेंटर से r दूरी पे, तो ये जो लाइन है ये एक्सियल लाइन है। क्लियर? दिस लाइन इज एक्सियल लाइन, सेंटर से r दूरी पे P पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितना है? a। ये डिस्टेंस कितना है? a। टोटल कितना हो गया? 2a। चेक करो, इसलिए हम ये लिखते हैं ना, a और a करना इजी हो जाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E1, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज E2। कुछ डायग्राम क्लियर हुआ? पता लगा? E1 is the electric field due to plus q charge. It is q 4 pi epsilon naught r minus a का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? r में से a माइनस कर दिया। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, it is q upon 4 pi epsilon naught
R प्लस ए का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, R में A ऐड किया और उस तरफ R में से A माइनस कर दिया। मैं डायग्राम की फोटो भेज रहा हूं, ध्यान से बनाना।